Very good morning to you students. Welcome once again to our history and political science class. Okay, so now students, before starting today I am going to take political science lesson 1. I'm going to start with, that is, post World War political developments. But before that, I'll discuss with you the answers of filling the blanks which I have had asked you last time while sharing the notes. As I always say, write it in pencil, attempt it for homework in pencil, and then after that I will be giving you the answers in the next class, that is now like today, and you all can make the fair answers. If it is correct, make it fair in pen, and if it is not, then you will erase that in pencil and write the correct answer in pen. So coming to the lesson 2, chapter 2, filling the blanks. The first one is the Prime Minister of India who took an initiative in resolving the questions of the Tamil minority in Sri Lanka was Rajiv Gandhi. Okay, A. Rajiv Gandhi. Then the second answer is, Dash is the father of Green Revolution in India. The answer is C. Dr. M.S. Swaminathan. C. Dr. M.S. Swaminathan. Then third answer, the war between India and China took place in the year B. 1962. The answer of the third one, the war between India and China took place in the year 1962. Okay, so students, make the necessary corrections and write the correct answer, and please submit me your notes before the next class. I want each and every child's notes here submitted, failing which you all will be considered absent. Am I clear about this? Okay, so now we'll move on to the political science part, lesson 1, post World War political developments. Now, as is clear with the heading itself, post World War political developments is what? Post means anything after, like I have explained many times before. Post word is used anything for an event to describe after something. So after World War, what were the political developments that took place, that we will learn in this chapter. So now we'll read on. In the civics books till now, we have studied local self-government institutions. India's constitution and our political system or governmental structure we have learned so far. In this class, we are going to study India's relations with the world. You must have understood world geography through the study of geography. Okay? You must have become familiar with the global historical events through the study of history. Now, through the study of political science, we are going to study India's relations with the world and some major global issues. Now, through geography, जैसे कि हम सब जानते हैं, ज्योग्राफी के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ है, उनकी वेदर कैसी है, कौन सा कंट्री में क्या क्या चीजें हो रही है. लेकिन पॉलिटिकल साइंस के द्वारा हम लोग ये जानेंगे कि जैसे अभी हम यहाँ पे सीखेंगे, जैसे इंडिया के रिलेशंस वर्ल्ड के साथ कैसे हैं, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर क्या है, फिर इंडियाज रिलेशंस विद द वर्ल्ड एंड सम मेजर ग्लोबल इश्यूज आल्सो. ग्लोबल यानी जो देश दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है, ना कि सिर्फ हमारे देश तक सीमित है, लेकिन दुनिया भर में क्या क्या चीजें हो रही है वो हमें जानने समझने को मिलती हैं. नाउ in this, we are dependent on different persons, okay, institutions and organizations in the society for different reasons and for different facilities. Now if you see, हम सब स्वयं सक्षम नहीं है, हम हर चीज में आत्मनिर्भर नहीं है, हर चीजों के लिए, क्योंकि क्या होती है, हर कंट्री की जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, हर कंट्री की एक जो सेटअप होती है, क्लाइमेटिकल वेदर होती है, पॉलिटिकल चेंजेस होती है, ये फैक्टर्स हमें हमेशा, क्योंकि हम अभी ग्लोबल हो गए, क्योंकि हम व्यवहार करते हैं सबके साथ, तो ये सारी चीजें जो है
ये फैक्टर्स बन जाती हैं जो हमें इफेक्ट करती है हमारे ट्रेड रिलेशंस में और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारी इंस्टीट्यूशंस में ये इम्पैक्ट करने लगती हैं। तो इस वजह से हमें ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या चीजें हो रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वॉट एवर सिचुएशन इज taking place. Okay, so for that we have to know what exactly is happening. Just a moment. So for that we have to know what exactly is happening because we are dependent, interdependent. हम लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंसी हमारी हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर उनकी अगर यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं से एप्पल चाहिए, सैफरन चाहिए, तो जैसे अगर हमारे ट्रेड रिलेशंस ईरान के साथ है या हमारे जैसे इराक साइड में या अगर हम देखें कि यूएई साइड में जहाँ पे तेल के खान होते हैं, खदान होते हैं, जैसे ये पेट्रोल, ऑयल, गैस जो भी आते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, यूएई से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि ये उनकी खासियत है, ये उनके यहाँ ज्यादा तादाद में बनती है ये सारी चीजें। तो हमारे लिए उस वजह से क्या होता है, हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फिर हमारे देश में कोई चीजें होती हैं जैसे एग्रीकल्चरल चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश होते हैं या लेदर होता है या ऐसे कई सारी चीजें होती है जो हमारे देश की खासियत है, जो हमारे यहाँ ज्यादा तादाद में बनती है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो कंट्रीज हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो दिस इज हाउ आवर सोशल लाइफ इज interdependent and mutual cooperation has a very important place in it. Just as it is true about individuals and society, it applies to different nations as well. There are many independent nations in the world like India. Some exchange and interaction goes on between them constantly. These independent states also enter into treaties with each other. A system of all these independent sovereign states comes up. We call it international system. ओके, अ सिस्टम ऑफ ऑल दिस क्या होता है, इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट जो है वो अभी एक हमारे लिए इम्पैक्ट करने लगती हैं एंड वी कॉल इट इंटरनेशनल सिस्टम। अब जैसे हमें और उनको भी, जैसे हम जिनके साथ भी ट्रेड रिलेशंस है हमारे, तो हमें क्या होता है, सब कंट्रीज को अपने पॉलिटिकल सिस्टम से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, हमारे पॉलिसीज, नीतियों को हमें एक साथ लेकर चलना, हमें एक साथ समझदारी, आपस में मेलजोल बढ़ा के, हमें कॉम्प्रोमाइज करके, हमें उनके साथ समझौता करके हमें वो चीजें आगे लेके जानेंगे। तो अभी क्या क्या ये फैक्टर्स है इंटरनेशनल सिस्टम को जो एक बढ़ाने के लिए या एक इंटरनेशनल सिस्टम को एक स्मूथ सेलिंग मैकेनिज्म बनाने में क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, फीचर्स क्या है इसकी, फीचर्स यानी इसकी खासियत क्या है। फर्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। द फर्स्ट पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया, इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना। All the countries of the world are dependent on each other for one reason or the other. However big, prosperous or developed a nation may be, it can never be self-sufficient about all its needs. यही अभी जैसे मैंने बताया कि चाहे हम कितने भी बड़े देश क्यों ना, अगर आज अमेरिका बोल रहे हैं हम सबसे बड़ा सुपर पावर है, तो आज अमेरिका भी हम जैसे देशों के लिए, इंडिया के ऊपर या और ऐसे कई सारे देशों के लिए, अमेरिका अभी भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं। हर चीज, हर कोई चीजों की उत्पादन हम हमारे इधर नहीं कर सकते, हर एक जगह की खासियत होती है। तो हम उस वजह से क्या होता है, छोटे बड़े देशों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ओके, ये पहली खासियत है। दूसरी खासियत क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसीज। अब हमारी जो है इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं वो फॉरेन पॉलिसी, जो नीतियां, पॉलिसी यानी नीतियां जो बनाई है उसके ऊपर हमारे, उसके द्वारा बनी जाती है, उसके द्वारा की जाती है। सो every nation has policies about its internal dealings as also about its relation with other nations. Such a policy is called foreign policy. We are going to study India's foreign policy in detail in the next chapter. Okay,
तो अभी यहाँ पे वो जो भी है पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या चीजें हुई हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है वो अगले चैप्टर में डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ they have put some certain questions like what is difference between interdependence between individuals and between nations। जैसे क्या फर्क है एक दूसरे के ऊपर, एक यानी एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर निर्भर है उसमें, और एक नेशन दूसरे नेशन के ऊपर डिपेंड है, इसमें क्या फर्क है। दूसरा, इज देयर सच अ डिवीजन लाइक रिच कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज। ये कि कोई ऐसे एक ऐसे हम सब जानते हैं कि हाँ है, just as a country is governed by a constitution, is there some kind of constitution at a global level? हाँ बिल्कुल है। जैसे हम हर कंट्री को चलाने के लिए सर्टन रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाए, इसी तरह ग्लोबल लेवल पे भी है। हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उन सबके रूल्स उन्होंने हमारे लिए लिखे हुए हैं, जिनको आधार बना के हम एक दूसरे के साथ रिलेशन बढ़ाते हैं। Who enjoys the supreme position in an international system? Now this is another question. Supreme यानी सबसे हायर ऑथोरिटी, किसके पास सबसे ज्यादा पावर है इंटरनेशनल सिस्टम में। ये सारे क्वेश्चंस हम थ्रू आवर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम ये सब देखेंगे। ओके, नाउ इन लोगों ने यहाँ पे कुछ लेट्स डू इट उन्होंने कहा, विल गो टू द नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज द थर्ड फीचर, तीसरा कौन सा है। यानी पहला हमने देखा कि इंटरनेशनल सिस्टम का फीचर क्या है, इंटरडिपेंडेंस। सेकेंड फीचर क्या था, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी। और अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, तीसरा फीचर उसकी खासियत, द वर्ल्ड इन विच वी लिव टुडे हैज बीन शेप्ड थ्रू मेनी इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स, हेंस we need to go back to history in order to understand today's world. We know that 2 world wars were fought in the last century. These were the most important events in the world in that century. The world completely changed because of them. New currents of thought emerged. Let us understand what else happened due to these world wars. जो तीसरा है फीचर है फैक्टर है, वो कह रहे हैं कि बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड किसका बना है कि बहुत सारी जो इवेंट्स और डेवलपमेंट्स हुए, खास करके जब वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध जो हुए थे, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था, तो उस वजह से क्या क्या चीजें चेंजेस हो गई, बहुत सारी चेंजेस हो गए, बहुत सारी पॉलिटिकल सिचुएशंस हो गई। यूएन आ गया, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के सब कंट्रीज ने सोच लिया कि अगर हम लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे तो इससे किसी को सिर्फ तहस नहस बर्बादी होनी है, दुनिया खत्म हो जानी है, लोगों की आबादी खत्म हो जानी है, कंट्रीज गरीब हो जाएंगे, कभी हम प्रॉस्पर नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ऐसे बनाया कि सारे कंट्रीज यूएन में 93 कंट्रीज इकट्ठे आए, मेंबर्स बन गए, और उन्होंने ये सोचा कि चलो हम ऐसे इकट्ठे अगर मिलजुल के रहेंगे तब ऐसे विश्व युद्ध नहीं होंगे, विश्व युद्ध नहीं होगा तो बर्बादी नहीं होगी, तहस नहस नहीं होगा, जान माल का नुकसान नहीं होगा, और सारे कंट्रीज अच्छे से फल फूलेंगे। तो ये इसके लिए हमें हमेशा करंट इवेंट्स पास्ट इवेंट जो भी हुआ उनसे सीखकर करंट इवेंट्स में हमें उनकी चेंजेस लानी पड़ेंगी, इसलिए थर्ड फीचर होता है बैकग्राउंड। नाउ द फोर्थ फीचर इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खासियत उसकी फोर्थ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। The First World War was fought between 1914 and 1918. Major countries of Europe took part in it. Europe had a very central place in international or global system at that time. The war caused a tremendous loss of life and property. The countries which joined the war suffered tremendous economic losses. Tremendous यानी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, दुगना तिगुना जैसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में ये लॉस उनको हुआ था जब वर्ल्ड वॉर हुआ था। Even the countries which did not join the war were impacted by the war. The economies of the victorious as well as losing countries collapsed. अब क्या हुआ, ये जैसे मैंने अभी भी बताया, तहस नहस, कोई भी युद्ध होता है, वॉर होता है, तो जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बता रहे, जो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, इसमें मेजर कंट्रीज जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज थे, ज्यादा से ज्यादा सबने इसमें हिस्सा लिया था, एंड उनका जो है वो एक
इंटरनेशनल और ग्लोबल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या हुआ था, एक मेन सेंट्रल प्लेस हुआ था, एक सेंट्रल जगह बन गई थी। एंड इस वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे जान माल, ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुआ। एंड द और जिन्होंने नहीं, जो छोटी मोटी कंट्रीज थी या किसी भी वजह से जिन्होंने ये नहीं इसमें हिस्सा लिया, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ गया और बुरा प्रभाव पड़ गया। एंड इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारी जो आर्थिक स्थिति थी, बहुत सारी इकोनॉमिक जो थी कंट्रीज की, वो तहस नहस हो गई, वो पूरी तरह विध्वंस हो गया उनका, पूरी तरह वो तबाह हो गई। ओके, देन कंट्रीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एंड अमेरिका। ये 5 कंट्रीज थे जो इकट्ठे आ गए। और सेंट्रल पावर्स उसमें कौन सी थी? जनरल, यानी ये इकट्ठे आ गए एलाइड पावर्स। और सेंट्रल पावर्स कौन थी? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया। ओके, ये सारी थी। ये आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, जानना है। ओके, now at the end of the first world war, all the nations felt that such a war should not happen again, and some measures need to be taken to achieve that end. An international organization called the League of Nations was established out of this thinking. It became an important platform to solve international disputes and carry out negotiations. The main responsibility of the League of Nations was understood to be to avoid war. अब जैसे मैंने पहले भी बोला है, जैसे ये वॉर हुआ तो बहुत लोगों को ये एहसास हुआ, महसूस हुआ, बहुत कंट्रीज को, कि ये फिर से दोबारा नहीं होना चाहिए। एंड इन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि लीग ऑफ नेशंस, यानी हम ऐसे नेशंस की एक झुंड बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे जो इस थिंकिंग को आगे लेके जाएंगे, जो इसमें सहमति दिखाएंगे और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हमें आगे से ऐसे वॉर्स नहीं करने। यूरोप कोलैप्स्ड एंड न्यू नेशंस केम इनटू बीइंग। अब यूरोप जब तक की बहुत पावरफुल कंट्रीज में थे, वह सारे माने जाते थे, लेकिन वॉर में उनका इतनी बुरी तरह से तहस नहस हुआ कि वो पूरी तरह वो कोलैप्स हो गया। कोलैप्स यानी गिर गई, उनकी जो एक आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई। Many European countries had their colonies in the continents of Africa and Asia. अब बहुत सारे यूरोपियन, जैसे ब्रिटेन अगर हम देखते हैं तो ब्रिटेन, फ्रांस हमारे इंडिया में भी थे, एशिया में जिन्होंने जैसे कहा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका में भी उन्होंने रूल किया था, उन्होंने अपनी कॉलोनियां बनाई थी। जैसे हमने पिछली बार भी देखा था लेसन में, ब्रिटिशरों ने अपनी कॉलोनीज अमेरिका के ऊपर भी उन्होंने 13 कॉलोनीज बनाई थी। तो इस वजह से उनकी जो बहुत सारी जगहों पे कॉलोनीज थी, मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन दिस कॉलोनी। जैसे हम देखते हैं इंडिया में भी उन्होंने इनके खिलाफ बगावत करना शुरू किया, वहां से अफ्रीका में भी बगावत करना शुरू किया, अमेरिका ने भी द वॉर ऑफ अमेरिका जो था, इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ, वहां पे भी उनको डिफीट किया। तो इन्होंने सब उनके खिलाफ बगावत की। और अब जैसे वॉर की वजह से इनकी भी पावर गिरने लगी। दिस मूवमेंट चैलेंज द हेगेमनी ऑफ द यूरोपियन नेशंस। हेगेमनी यानी उनकी जो होल्ड थी, उनकी जो सुप्रीमेसी थी, उसको उनको चैलेंज, यानी उनको अभी उसका सामना करना पड़ा। Nations League of Nations was established after the First World War to establish peace, but it did not succeed at preventing war. Autocratic regimes came up in Germany, Italy, Spain, and other countries. All these developments culminated in the Second World War. अब हालांकि जब उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी ये रियलाइजेशन हुई थी कि हमने युद्ध नहीं लड़ना है, लेकिन इसके बावजूद ये जो चल रही थी, ये जो उन्होंने यूरोपियन कंट्री जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने जो बाकी कंट्रीज के ऊपर अपना जो ऑटोक्रेटिक, यानी अपने जो जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा कूटनीतियां की, बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर अपना दबाव रखा, उनके खिलाफ क्या हुआ। और जर्मनी जैसे, जर्मनी, इटली, स्पेन एंड अदर कंट्रीज, इनकी जो ऑटोक्रेटिक थी, यानी जर्मनी, ये सब जो लोगों के ऊपर हमेशा दबाव डालते थे, प्रभाव डालते थे, गलत तरीके से उनके ऊपर कंट्रोल करते थे, इनका दिखने लगा। और लेकिन ये सक्सीड नहीं होने के वजह से क्या हुआ, फिर से ये
दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परिवर्तित हुआ, क्योंकि अब बाकी नेशंस को समझ में आ गया कि इन लोग क्या कर रहे थे, तो इन्होंने उनके खिलाफ बगावत की और इस वजह से क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। नाउ अभी इन्होंने डिक्टेटर जो हिटलर थे उनके बारे में लिखा है। द ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल regime of Hitler came up in Germany. What would have happened had the democratic tradition been strong in Germany? What precautions should we take in order to prevent the rise of autocratic regimes? अब वो हमें पूछ रहे हैं, जैसे हिटलर जैसे बहुत सारे तानाशाही थे, उन्होंने प्रभाव किया, उन्होंने कभी डेमोक्रेसी यानी लोकशाही को उन्होंने कभी बढ़ने नहीं दिया। तो ये हमें एक सवाल पूछ रहे हैं, ये आपको क्या लगता है कि अगर हमें तानाशाही रोकनी है किसी भी कंट्री में और अगर हमें लोकशाही लानी है, डेमोक्रेसी लानी है, तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए? नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब वो हमें बता रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन 1939 एंड 1945। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 में था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1939 से लेके 1945 तो ओके। So it proved to be far more destructive than the first world war. अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी बहुत ज्यादा तादाद में भयानक था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, बहुत ज्यादा खराब और हानि पहुंचाई इसने। ओके, नॉट ओनली वॉज इट मोर वाइड स्प्रेड कंपेयर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के से भी ज्यादा फैला हुआ था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जो कंट्रीज थे अभी इसमें ज्वाइन हो गए। ओके, बट ऑल्सो मोर एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी वॉज एम्प्लॉयड इन दिस वॉर। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई, जैसे 1918 में और उसके बाद तुरंत ऑलमोस्ट 21 ईयर्स के बाद जो ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ, 21 ईयर्स में टेक्नोलॉजिकल भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो उन्होंने बहुत सारे हथियारों का भी इस्तेमाल किया, बहुत सारे एटॉमिक न्यूक्लियर, जैसे अमेरिका ने तभी देखा हिरोशिमा के ऊपर, नागासाकी के ऊपर उन्होंने अपने एटॉमिक बॉम्ब फेंके थे, उस वजह से बहुत ज्यादा तादाद में डिस्ट्रक्शन हुई। ओके, countries which took part in the Second World War once again faced a situation of economic crisis. ठीक है, जिन्होंने अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्ट लिया, ऑब्वियस है कि जब भी कोई वॉर होता है तो बर्बादी होती है, तबाही होती है, तो ये फिर से वही आर्थिक कंगाली की स्थिति आ गई सब देशों में। नाउ कंट्रीज इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा था कि कौन कौन से, जैसे ब्रिटेन थे, एलाइड पावर में फ्रांस, इटली और ऐसे थे, और सेंट्रल में हमने देखा जर्मनी थे, और जो भी बाकी कंट्रीज उन्होंने नेम किया था वहां पे। तो अभी यहाँ पे एलाइड पावर्स कौन थे? एक्सिस पावर्स, एक्सिस यानी जो मेन सेंट्रल पावर थे वो, एंड यहाँ पे वो कौन थे एलाइड पावर्स, कौन यानी एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना, अमेरिका थे, ये एक तरफ थे। एंड दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स जो थे वो थे जर्मनी, यानी सेंट्रल पावर्स। एक्सिस पावर्स दूसरा नाम जो उन्होंने पहले इसमें कहा सेंट्रल पावर्स, उसी का नाम है एक्सिस। एक्सिस वो होता है जो सेंट्रल पॉइंट में होता है, ठीक है। तो जर्मनी, जापान एंड इटली। Okay, now America played a major role in the Second World War. It had manufactured nuclear weapons. In order to end the war, it dropped 2 nuclear weapons on 2 cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki, on 6th and 9th August 1945 respectively. अब जैसे वो ये युद्ध लड़ रहे थे, वो कितने सालों तक चला? 1939 से लेकर 1945, यानी 6 साल तक ये दूसरा विश्व युद्ध चला। पहला विश्व युद्ध 4 साल चला, 1914 से लेकर 1918, एंड दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 6 साल चला। और आखिर में तब तक जो अमेरिका एक पावरफुल कंट्री के इसमें जाना जाने लगा था, उसने क्या किया, अपनी जो न्यूक्लियर बॉम्ब थी उस वॉर को, उस युद्ध को अपनी पावर दिखाकर खत्म करने के लिए उन्होंने 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप किए। उसके वजह से क्या हुआ? The Second World War ended with the defeat of Germany in Europe and of Japan in Asia.
अब इसका क्या हुआ, इसका सीधा नतीजा ये हो गया कि जर्मनी जो है वो यूरोप से हार गया और जापान जो है वो एशिया में हार गया। ठीक है। अमंग द मेनी इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द वॉर वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। अब जैसे हम बोलते हैं कोल्ड वॉर वो सिचुएशन होती है जहाँ पे मन मुटाव होता है लेकिन कोई किसी के साथ कुछ बात नहीं करता, ना कोई रिलेशन रखता है, ना कोई, जैसे हम देखते हैं ना कभी हम बोलते हैं हमारे दोस्तों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, यानी लड़ाई तो जारी है, मन मुटाव है, आपस में बातचीत बंद है, एक दूसरे को कोऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हाथापाई करे, गाली गलौज करे, मार पिटाई करे या झगड़े करे, वो ये है कि हमें कोई कोऑपरेशन नहीं करनी। ठीक उसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया बिटवीन 1945 टू 1991, इतना लंबा चला। कैन यू सी दैट कि कितने साल चला, पूरे 6 साल जो लड़ाई हो गई विश्व युद्ध, उसके बाद 1945 से लेके 1991 तक करीब करीब 35 साल ये कोल्ड वॉर चल रहा था। लेट अस टेक स्टॉक ऑफ अ फ्यू चेंजेस इन दिस पीरियड। ठीक है ना, ये पीरियड में क्या क्या चेंजेस हो गए ये उन्होंने बताया। अब कोल्ड वॉर जो ऑलमोस्ट लगभग 35 नहीं सॉरी 45 ईयर्स ऑलमोस्ट जो ये वॉर चला, उसमें क्या क्या चेंजेस हो गए। कोल्ड वॉर में अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन हु आर एलीज इन द सेकेंड वर्ल्ड, एलीज मीन दोस्त जो थे तब तक रशिया और अमेरिका, वो कंपिटिटर्स बन गए, वो दुश्मन हो गए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। The cooperation between them gave way to rivalry. This rivalry occupied a period of 40 to 45 years of international politics. ये इतना लंबा चला कि 40-45 साल तक उनकी जो राइवलरी दुश्मनी है वो चली, जो दुश्मनी तब से शुरू हुई थी, जो उसके पहले दोस्त हुआ करते थे। There was no open war between these two countries, but there was such tension in their relations that it seemed that a war would erupt at any time. जैसे मैंने कहा कोल्ड वॉर में लड़ाई झगड़ा डायरेक्टली कोई करता नहीं, लेकिन इस कदर उनके बीच में मन मुटाव था कि ऐसी स्थिति हो गई जैसे मानो किसी भी वक्त में युद्ध शुरू हो सकता है। The concept of Cold War is used to describe the conditions where there is no actual war, but there are such tensions in the circumstances that they may be responsible to cause war. In this period, America was already a superpower, but the Soviet Union also tried to become a superpower by making nuclear weapons and by increasing its military might. The struggle for power, arms race, differences in ideologies, attitude of checkmating each other by strategies and counter strategies gave rise to the Cold War. अब जैसे मैंने बोला है कोल्ड वॉर होता है तो वो डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं, डायरेक्टली गाली गलौच नहीं हो रहा है, डायरेक्टली कोई मार पिटाई नहीं हो रही है, डायरेक्टली कोई वेपन्स के साथ खेलने रहा है, लेकिन वो जानबूझ के लोगों को तकलीफ, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने में लग जाते हैं, जानबूझ के वो क्या करने लगे, सोवियत यूनियन ने सोचा सिर्फ अमेरिका ही क्यों सुपर पावर बने रहेगा, हम भी सुपर पावर कहलाएंगे, तो उन्होंने भी अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने शुरू किया, मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू किया। एंड द स्ट्रगल ऑफ पावर आर्म्स, ये उन्होंने बार बार हर चीज में कि हमें उनसे बेहतर दिखाना है एक दूसरे को, इसने अगर ये किया मैं उससे बढ़कर करूंगा, मैं उससे बढ़कर करूंगा तो मैं उससे भी बढ़कर, तो ये बार बार एटीट्यूड ऑफ चेकमेटिंग ईच अदर, कि बार बार नीचा दिखाना, बार बार मौके ढूंढना कि कैसे सामने वाले कंट्री को नीचा दिखाना, ये उन्होंने शुरू किया और जिस वजह से वो कोल्ड वॉर बढ़ते गया तो 40-45 years। नाउ इफेक्ट्स ऑफ द कोल्ड वॉर, अब इसके क्या क्या इफेक्ट्स होने लगे, क्या क्या इसकी खामियां होने लगी, वो हमें वो समझा रहे बता रहे। ओके, क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा उनको हर वक्त ये था कि हमें भी सुपर पावर बनना है, तो सुपर पावर कैसे बनेंगे कि अगर युद्ध लड़ेंगे तो हमारे पास भी मिलिट्री पावर बड़ी होनी चाहिए, हमारे पास वेपन्स भी है सही, उनसे भी बेहतर होने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पावर्स क्रिएटेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, द रिस्पेक्टिव सुपर पावर्स
took up the responsibility of the security of the countries joining the military organizations led by them. NATO, that is North Atlantic Treaty Organization, was a military organization under the dominions of America, while the Warsaw Pact was a military organization under the command of Soviet Union. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मिलिट्री जो बढ़ाई, उसमें नाटो जो थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके अंडर आता था, किसकी उसकी होल्ड थी, अमेरिका की। एंड वॉरशॉ पैक्ट जो था वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आ गई सोवियत यूनियन के अंडर, ये उन्होंने बनाई अपनी। ओके, देन बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। बाइपोलराइजेशन, बाइपोलर का मतलब ही होता है एकदम एक्सट्रीम। अगर अभी ये अगर एकदम एक तरफ है तो दूसरा एकदम दूसरी तरफ है। फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग की नेचर, अगर हम बोलते हैं कि किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, इसका मतलब है उसके जो उसकी जो मूड स्विंग्स होती हैं, उसकी जैसे अभी वो एकदम से खुश है तो अचानक एकदम से गुस्सा है या रोने लगता है। अभी वो एकदम अच्छे से बात कर रहा है तो दूसरे क्षण वो बिना कोई मतलब के गुस्से हो जाता है या गुस्से में बात करता है। तो इसी तरह वर्ल्ड में भी एक बाइपोलराइजेशन हुई। कैसे हुई? ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जॉइंड ईदर ऑफ द टू सुप्रीम ब्लॉक्स। अब ये जो टू सुप्रीम ब्लॉक्स हुए थे, एक था रशिया, एक था अमेरिका। तो क्या हुआ, उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो छोटे मोटे देश थे उनको अभी इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा। तो इट बिकेम बाइपोलराइजेशन, इधर तुम अमेरिका के साथ हो या तो तुम रशिया के साथ हो, कहीं इन बिटवीन नहीं हो। ऐसे नहीं हो सकते हो कि चलो तुम अमेरिका के भी दोस्त हो और तुम रशिया के भी दोस्त हो, नहीं। बाइपोलराइजेशन हुई, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। Such a division of the nations of the world in two groups is bipolarization. The scope of the Cold War increased due to this. This fear of tension spread. अब क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ, ये जो कोल्ड वॉर थे, मन मुटाव थे, उनकी अभी जो एक वाइड रेंज बढ़ने लगी और इसके वजह से क्या हुआ, सब जगह यानी सारी दुनिया में ही उसका टेंशन बढ़ने लगा। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टॉप टिल हियर. In the next lesson, we will continue with the other effects of the Cold War. क्या हुआ, वो other effects हम पढ़ेंगे in the next lesson. So today we will end it here. And like I said, I want the homework to be completed and sent to me immediately. For today, I will ask you all to just write about you will make two concept charts. Like first you will write points, like you'll make a chart, okay, and in the chart you'll make, first thing you will write the World War I and World War II, the period you will write, यानी कब से कब शुरुआत हुई थी उसकी चार्ट बनाओगे। दोनों की पीरियड क्या थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पीरियड क्या थी 1914 to 1918 ईयर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पीरियड क्या थी 1939 to 1945, that is here you will write 4 years, there you will write 6 years, okay। कौन से नेशंस इन्वॉल्व थे, एलाइड कौन से थे, सेंट्रल कौन से थे या एलाइड कौन से थे, और एक्सिस नेशंस कौन से थे, वो आप उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन से थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन से थे, टेक्स्ट बुक में उसकी अगर आप देखते हो पेज 64 पे वो चार्ट बना हुआ है। बस वो सारे पॉइंट्स को आपको ऐड कर कर वो चार्ट बनाना है। इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थिंग्स, इम्पैक्ट यानी क्या क्या उस पर पॉलिटिक वाइज एंड इकोनॉमिक वाइज हुआ, यहाँ तक आप ये चार्ट पहले बनाओगे। लेटर ऑन व्हेन आई कंप्लीट द फुल चैप्टर I'll ask you to continue with the other points in the chart, okay? And please, I want each and every child's homework submitted to me on the chat. Is that clear? Okay. Have a good day, students. Thank you so much.